Hello everyone, welcome back to our channel Virtual Pharmacy. As you all know that schedules are very important topic in pharmaceutical jurisprudence. So in today's video, I'm going to give you some easy trick to remember the schedules. So first, schedules are divided in two classes. First, schedule to the Act, which comes in 1940, and second, schedule to the rules, which comes in 1945. The main objective of schedule is to make available standard quality drug and cosmetic to consumers. So let's start with Schedule A. Schedule A is pro forma for application for the license issue and renewal of license for sending memoranda under the Act. So one trick to remember Schedule A is schedule start with A and any procedure regarding the issue of license or opening a pharmacy, the first step is application. A for application. Next one is Schedule B. Schedule B is rates of fees for the test or analysis by the Central Drug Laboratory or the government analyst. So Schedule B याद करने के लिए एक easy trick है. आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में सुना होगा. The image showing the same. So currency is money. So currency is related to money and money is related to fees. So B for bitcoins and bitcoins for fees. Then Schedule C. Schedule C include list of biological and special products applicable to special provision. So Schedule C को कैसे याद करें? जो ओशियन होता है वो भी C प्रोनाउंस होता है, SEAC और EAC, और मैक्सिमम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के सोर्सेज C से ही होते हैं. तो शेड्यूल C को हम लोग ओशियन वाले C से याद कर सकते हैं. शेड्यूल B और C को याद करने का एक और ट्रिक भी है. अगर आप इन दोनों अल्फाबेट को एक दूसरे से रिलेट कर दो, फॉर एग्जाम्पल B के आगे C लगा दे तो C से कॉइन हो जाएगा. शेड्यूल B इज रिलेटेड टू कॉइन एंड शेड्यूल C के आगे B लगा दे. शेड्यूल C इज फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो C उसके बाद B फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. देन नेक्स्ट इज शेड्यूल C1. सो शेड्यूल C जो था वो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के लिए था एंड शेड्यूल C1 इज फॉर लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट नॉन पेरेंटल एप्लीकेबल टू स्पेशल प्रोविजन. देन शेड्यूल D. शेड्यूल D is list of drug that exempted from provision of import. तो शेड्यूल डी में वो ड्रग्स आते हैं जो एग्जेम्प्टेड है फॉर स्पेशल प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट. इम्पोर्ट मतलब जो किसी और देश से हमारे देश में आते हैं सेल के लिए. सो डी से देश, दूसरे देश से जो इम्पोर्ट होके हमारे देश में आते हैं सेल के लिए. सो डी से आप देश करके याद कर सकते. सो डी फॉर देश. देन शेड्यूल ई is a list of poisonous substance under the Ayurvedic, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम. शेड्यूल ई में पॉइजन आते हैं. सो पॉइजन को याद करने के लिए पॉइजन का एक सिनोनिम होता है एम्बिटर, जो कि स्टार्ट होता है ई से. अगर एम्बिटर आपको याद ना हो तो आप ईविल से भी याद कर सकते हैं. सो एम्बिटर और ईविल से आप शेड्यूल ई को याद कर सकते हैं. ये रहा ईविल का साइन जिससे आपको याद हो जाएगा. शेड्यूल एफ. शेड्यूल एफ के बहुत सारे पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज नॉर्मल एफ which classified in two parts. First is space, equipment and supplies required for blood bank, and second is minimal requirement for the grant of license to procure blood component from whole human blood. So F से होता है फर्स्ट, और जो हमारी बॉडी में सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होती है? ब्लड. सो F फॉर फर्स्ट एंड फर्स्ट important thing is blood. So schedule F is space, equipment and supplies required for blood bank. और अगर आपको ये फर्स्ट पॉइंट याद हो जाएगी तो सेकंड अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ उसमें लाइसेंस ही चेंज. देन नेक्स्ट इज F1. F1 is also divided in three parts. First one is provision applicable to production of bacterial and viral vaccine. Second is for provision applicable to production of sera from living animals. And third one is provision applicable to manufacture and standardization of bacterial origin diagnostic. So first F को हमने फर्स्ट से याद किया था. सेकेंड F1 को हम लोग फिट से याद करेंगे. F फॉर फिट. फिट रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या चाहिए? तो आपको कैसे पता चलेगा आप फिट हैं? फर्स्ट, अगर आपने बचपन में वायरल वैक्सीन दी है, जितनी भी वैक्सीन आती है जैसे कि हेपेटाइटिस, कोलेरा, टीबी, इन सब की अगर वैक्सीन आपने दी है मतलब आप फिट हैं, आपको ये सारी डिजीज नहीं हो सकती. सेकेंडली, अगर आपने सेरा प्रिपरेशन ली है तब भी आप फिट हैं. और थर्ड, अगर आप रेगुलर डायग्नोसिस करा रहे हैं किसी भी डिजीज के लिए मतलब आप फिट हैं. एंड नेक्स्ट वन इज F2. F2 इज ए स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग. सो F2 को कैसे याद करें? सर्जिकल ड्रेसिंग मतलब सर्जरी, मतलब इंजेक्शन लगना. और F2 कैसा साउंड करता है? फट्टू. F2 फट्टू. सो जब भी हम लोग इंजेक्शन या सर्जरी की बात सुनते हैं हम लोग थोड़े फट्टू जैसा बिहेव करते हैं. सो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं F2 फॉर फट्टू. एंड हम लोग कब फट्टू हो जाते हैं? जब हम लोग सर्जरी की बात सुनते हैं. देन नेक्स्ट इज F3.
F3 is for standard for sterilized umbilical tap. अम्बेलिकल टैप थोड़ा अम्ब्रेला जैसा साउंड करता है, और F3 छतरी टाइप साउंड करता है. सो छतरी एंड अम्ब्रेला आर सेम, एंड अम्ब्रेला इज फॉर अम्बेलिकल. तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, अम्बेलिकल फॉर अम्ब्रेला. सो नेक्स्ट इज डबल एफ. दो एफ. हमारी बॉडी में बहुत सी चीजें दो होती है, बट अगर हम लोग ऊपर से स्टार्ट करें तो सबसे पहली जो दो चीज आती है वो है हमारी आईज. सो स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन. ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन is related to eye. So 2F is for 2 eye. Then next is G. G is a list of substance required to be used under medical supervision and labeled accordingly. ऐसे सब्सटेंस जिसे हम बिना किसी के सुपरविजन के नहीं ले सकते. सुपरविजन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? गाइडेंस. एंड जी फॉर गाइडेंस. तो शेड्यूल जी फॉर गाइडेंस. बिना किसी के गाइडेंस के हम ये सारे सब्सटेंस नहीं ले सकते. So next is Schedule H. Schedule H include list of substance that should be sold by retail only on prescriptions of RMP. ऐसे ड्रग्स जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और बिना RMP मतलब रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, बिना इनके आप नहीं ले सकते. तो शेड्यूल H को हम कैसे याद करें? H फॉर होशियार. मतलब ऐसे ड्रग को लेते समय आपको होशियार रहना है, आपको बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ऐसे ड्रग को नहीं लेना है. देन नेक्स्ट इज शेड्यूल J. J is a list of disease and ailments that ड्रग शुड नॉट क्लेम टू बी क्योर. ऐसे ड्रग सेल होती हैं जो बोलती हैं कि वो सारी डिजीज क्योर कर सकते हैं. ऐसे ड्रग कौन बेचता है? वो जो झोला छाप डॉक्टर होता है या झोला छाप फार्मासिस्ट होता है. सो जे इज फॉर झोला छाप. आई नो ये थोड़ा फनी है, पर फनी जल्दी याद होता है. सो जे इज फॉर झोला छाप. झोला छाप लोग ही हमें ऐसे ड्रग देते हैं जो बोलते हैं कि वो कोई भी डिजीज क्योर कर. देन नेक्स्ट इज शेड्यूल के. लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर. एग्जेम्प्टेड ड्रग मतलब ऐसे ड्रग जिनके ऊपर कोई भी स्पेशल प्रोविजन या रूल अप्लाई नहीं होते. दे आर ओके टू मैन्युफैक्चर. सो के फॉर ओके. दीज ड्रग्स आर ओके टू मैन्युफैक्चर. सो के इज फॉर ओके. द नेक्स्ट इज शेड्यूल एम. तो शेड्यूल एम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्लूड GMP, और GMP का अपना ही बड़ा लंबा चैप्टर. सो इसे आप दो तरीके से याद. शेड्यूल एम में एम आता है और GMP में भी एम आता है. और दूसरा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस. मैन्युफैक्चरिंग. सो मैन्युफैक्चरिंग में भी एम आता है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस. GMP रिक्वायरमेंट. GMP इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट. सो एम तो याद हो गया मैन्युफैक्चरिंग और GMP से. देन नेक्स्ट है M1, M2 एंड M3. ये हम कैसे याद करें? सो 1 2 3. 1 2 3 इज साइन ऑफ प्रायोरिटीज. किसे हम पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं, दूसरी प्रायोरिटी दे रहे हैं और तीसरी प्रायोरिटी दे रहे हैं. एंड M स्टैंड फॉर मेन. मेन प्रायोरिटी 1, मेन प्रायोरिटी 2, मेन प्रायोरिटी 3. तो जैसे आपको पिंपल्स हो गए या कोई भी बीमारी हो गई, तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं? होम रेमेडीज को. बिना किसी से कंसल्ट के, बिना हमारी आदत है सबसे पहले हम होम रेमेडीज को प्रायोरिटी. सो M1 इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन. होम्योपैथी में भी होम है और होम रेमेडीज. सो होम्योपैथिक होम रेमेडीज सेम है. तो सबसे पहली प्रायोरिटी होम रेमेडीज. देन M2 सेकंड प्रायोरिटी. अगर आपको पिंपल हो गया, सबसे पहले आप होम रेमेडी सकते हैं. फिर सेकंड आप क्या करते हैं? अगर होम रेमेडी से ठीक नहीं हुआ, तब जाके आप कॉस्मेटिक्स पे जाते हैं. सो M2 इज रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स. देन लास्टली M3 थर्ड प्रायोरिटी आप किसे देंगे? अगर कॉस्मेटिक से भी आपके पिंपल्स ठीक नहीं हुए, कोई भी डिजीज से कोई भी ठीक नहीं हुआ, तब जाके हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिकल एडवाइस लेते हैं. सो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस. नेक्स्ट इज शेड्यूल एन. शेड्यूल एन इज लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट टू रन अ फार्मेसी. जितनी भी मिनिमम चीजें हम लोग को एक फार्मेसी रन करने के लिए चाहिए, वो आता है शेड्यूल एन में. सो एन इज फॉर मिनिमम. नेक्स्ट इज शेड्यूल ओ. शेड्यूल ओ इज स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड. शेड्यूल ओ से हम लोग ऑपरेशन याद कर सकते हैं. कहीं भी ऑपरेशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? वहाँ चीज़ों को स्टेलाइज करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं. सो बिफोर ऑपरेशन डिसइंफेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. सो ओ इज फॉर ऑपरेशन एंड ऑपरेशन इज रिलेटेड टू डिसइंफेक्ट. अगर आपको ऐसे याद नहीं हो सकता तो एक और ट्रिक है. जितने भी डिसइंफेक्टेंट होते हैं जैसे कि डेटॉल, लाइजोल, इन सब में ओ होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइजोल, इसमें भी ओ है और डेटॉल में भी ओ होता है. तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज शेड्यूल पी. शेड्यूल पी तो बहुत ईजी है. सो पी इज लाइफ पीरियड. पी फॉर पीरियड, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स. एंड P1 में भी P है, पैक साइज ऑफ ड्रग. सो शेड्यूल P एंड P1 इज वेरी इजी. नेक्स्ट वन इज शेड्यूल क्यू. शेड्यूल क्यू दो पार्ट्स में है. शेड्यूल क्यू दो पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2. पार्ट 1 इज लिस्ट ऑफ डाइज, कलर, पिगमेंट परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड सोप. एंड P2 इज लिस्ट ऑफ कलर परमिटेड इन सोप.
सो क्यू से हम लोग याद कर सकें क्वालिटी क्लोथ, जो क्वालिटी क्लोथ्स होते हैं उनसे कभी रंग नहीं निकलता। एंड शेड्यूल की इंक्लूड कलर एंड डाई एंड पिगमेंट। द नेक्स्ट इज शेड्यूल आर। आर इज स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्ट। आर इज फॉर रिस्की। अगर आप लोगों ने मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्ट, ये एक टाइप का रिस्क है, विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव ये एक टाइप का रिस्क है। सो शेड्यूल आर इज फॉर रिस्क। द नेक्स्ट इज R1 and R1 is for standard for medical devices. The next is schedule S. Schedule S is for standard for cosmetic. So S is for सुंदर, और सुंदर देखने के लिए सबसे important है cosmetic. So schedule S is for cosmetics. Then next है schedule T. Schedule T is requirement of factory premises for आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। ये भी जीएमपी के अंदर आता है, लेकिन इससे पहले जो हम लोगों ने शेड्यूल एम में जीएमपी पढ़ा था, में वो दूसरे ड्रग्स के लिए था, लेकिन इसमें आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी टोटल। सो टी इज फॉर टोटल। जो टोटल अदर सिस्टम है फॉर एलोपैथी लाइक आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी कम्स अंडर शेड्यूल टी। टी इज फॉर टोटल। अगर आपको टोटल से याद नहीं होगा तो एक और ट्रिक है, आप टी फॉर तेल से भी याद कर सकते हैं। आयुर्वेदिक तेल तो आप बहुत यूज करते होंगे, so T for tail. Then next is schedule U. So schedule U is manufacturing raw material and analytical record of drugs. So U is for urgent. अगर हमें कोई भी चीज़ याद नहीं है, हमने कहीं लिख के रखी है, तो हमें वो रिकॉर्ड चाहिए, और अर्जेंट केसेस में हमेशा रिकॉर्ड्स ही यूज होते हैं। सो U for urgent and urgently हमें रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। Then next is U1. U1 is manufacturing raw material and analytical record of cosmetic. U and U1 is same. U1 include cosmetic. So U1 थोड़ा यौवन जैसा साउंड करते हैं, U1 यौवन, और यौवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्मेटिक्स। देन नेक्स्ट इज V. शेड्यूल V इज स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। सो पेटेंट किन्हें मिलता है? ऑलमोस्ट नहीं मिलता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो V इज फॉर VIP, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। जो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं उन्हें ही पेटेंट मिलता है। द नेक्स्ट इज W. Schedule W is list of drug marketed under generic names. So generic drug are far better than branded drug and cheap also. So W is for Varti. Next is Schedule X. Schedule X is list of narcotic drug and psychotropics. So X से सबसे पहले क्या याद आता है? X से सबसे पहले याद आता है एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड। सो अगर आपके एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चले जाए, जैसा कि फिल्म में होता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर नार्कोटिक ड्रग्स हैं जैसे कि ओपियम, गांजा, ये सब। सो शेड्यूल एक्स इज लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। देन लास्ट वन इज शेड्यूल वाई. शेड्यूल वाई इज रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स। अल्फाबेट्स में सबसे लास्ट में वाई आता है, वैसे तो सबसे लास्ट में जेड आता है, पर कोई शेड्यूल जेड नहीं है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में वाई आ रहा है, और वाई सबसे लास्ट में आता है। किसी भी न्यू ड्रग डिजाइन का सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल। सो वाई इज लास्ट एंड क्लिनिकल ट्रायल इज लास्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू.